السلام علیکم میم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج فائنلی آخر کار ہم سب آخری چیپٹر پر پہنچ گئے ہیں. قرآن کورس کا سفر جو ہم نے چیپٹر 1 سے شروع کیا تھا اور اس کے بعد اب تک ہم نے 19 چیپٹر یعنی 19 لیسنز جو ہیں وہ مکمل کیے ہیں. آج ہم اسٹڈی کریں گے چیپٹر 20 ہے یہ, اور اس کا اے اور بی پارٹ دونوں سمجھیں گے. تو آئیے آج کی آخری قرآن کلاس میں, اس کے بعد دہرائی ہوگی ڈونٹ وری, لیکن جو پراپر لیسنز ہوتے ہیں ان کے مطابق لاسٹ آج کی جو کلاس ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. یہاں آپ کو جو لیفٹ سائڈ پہ مینشن ہوا ہوا نظر آ رہا ہے البخاری, اور یہاں لکھا ہے 5027, یعنی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سب میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اگر میں آپ ہم سب اس کام سے منسلک ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اللہ کے بہترین لوگوں میں ہو سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور یہ پورا پروگرام گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ سب تک آیا. یہ انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی جو کولابوریشن ہوئی الفلاح منزل سے, ان کی کولابوریشن کے ساتھ یہ پروگرام آپ تک پہنچا ہے. IIUI کے جتنے بھی اسٹوڈینٹس تھے, ٹیچرز, پیرنٹس اور ان سے ریلیونٹ جتنے بھی لوگوں نے اس کو جوائن کیا, جو لائیو کلاس میں رہے, جنہوں نے ریکارڈنگ سنی, ان سب کو بہت بہت مبارکباد. اور اس مبارکباد کے ساتھ آج کا چیپٹر ہم شروع کرتے ہیں اور باقی باتیں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. جی, تو کل جو چیپٹر 19 ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کے طریقے کی بات ہوئی تھی. اس میں لفظی ترجمہ تھا, رننگ ٹرانسلیشن, بامحاورہ ترجمہ تھا, سبق کیا ملا وہ بات ہوئی. پھر ہم نے امیجن اور فیل کر کے ہم چیزوں کو سمجھتے رہے. چیپٹر 19 کا جو بی پارٹ تھا گرامر, اس میں بھی ہم نے خاص طور پر جو ہے کچھ ایڈیشنل الفاظ کے ساتھ ٹیبلز کو مکمل کیا, گرامر کے ٹیبلز کو. ٹھیک ہے, تو ہم نے دراصل کیا پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اس پورے کورس میں اس کو لے کر ہم بات کریں گے. اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا, ٹھیک ہے. گرامر میں صرف صغیر ہوگا. یہ ایکچولی جو آپ کو نیمز نظر آ رہے ہیں, ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی نئی چیز ہے, نئی چیز نہیں ہے. آج آپ کو جو پورا ٹائم آپ نے کورس کیا ہے نا, چیپٹر 1 سے 19 تک, اس کورس میں جتنے چیپٹرز آپ نے اسٹڈی کیے ہیں انہی کے بارے میں بات ہوئی. آج کوئی نئی چیز, کوئی بہت ہی نیا کانسیپٹ نہیں آئے گا. پہلے حصے میں تو ہم چیپٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ جگہوں پر قرآن پاک کی کچھ بہت ہی فضیلت والی سٹیٹمنٹس ہوں گی, کچھ حصے, کچھ دعائیں, اذکار, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا, یا آیات, ان کا ہم ترجمہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح قرآن کے 50% ورڈز انڈرسٹینڈ کیے ہیں. اور صرف صغیر کا مطلب ہے, مطلب اس میں کچھ ایسا ہوگا, سمپلی آئی ایم ٹیلنگ یو, کہ جو ٹیبلز آپ نے کل تک مکمل کیے ہیں نا, جس میں فعل ماضی بھی تھا, اس کے 6 صیغے مذکر اور ایک مؤنث تھا. فعل مضارع میں 6 صیغے یعنی 6 لفظ مذکر اور ایک لفظ مؤنث تھا. پھر فعل امر اور نہیں میں 4 الفاظ تھے. پھر فاعل, مفعول اور فعل 3 الفاظ تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم نے اسٹڈی کی تھی. ان کو شارٹ کر کے ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں تو آپ میں سے سب لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ہم, کیونکہ ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں شارٹ کر کے ایزی طریقے سے مل جائے تو بہت اچھا ہے. تو اس قسم کی کچھ چیزیں ہوں گی, تو آج آپ کا ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ آج تک چیپٹر 1 سے 19 تک ہم نے جو ٹارگیٹ تھا ہمارا کہ ہم 232 ورڈ سیکھیں گے, وہ ہم نے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کل تک ہم نے سیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ الگ بات ہے کہ کتنے لوگوں نے مے بی کوئی لیسن مس کر دیا ہو, مے بی, اور ریکارڈنگ نہ سنی ہو, تو ان کو چاہیے وہ ریکارڈنگ سنیں تاکہ ان کا بھی یہ ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو. یا آپ نے کوئی پارٹ ابھی ریوائز نہیں کیا, آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے, تو آپ اس کو ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو 232 ورڈز آپ نے اتنے چیپٹرز میں کیے ہیں نا, سمجھے ہیں, یہ ایکچولی قرآن میں ریپیٹ ہو کر 41,000 سے بھی زیادہ بار آئے.
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हम इस कोर्स में कुरान के 41,111 वर्ड्स तकरीबन सीख रहे हैं, और ये अल्फाज अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 50% से भी ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज क्योंकि मैंने आपको बताया टारगेट मुकम्मल हो चुका है, नई जो स्टेटमेंट्स और वर्ड्स हमने याद करने थे 50% कंप्लीशन के लिए वो हो चुके हैं। आज क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स मुकम्मल होने के साथ जो है वो ये बात बहुत जरूरी है कि आप सबको भी यकीन हो जाए कि आपने वाकई 50% वर्ड्स कुरान के समझे हैं। हो सकता है आपके ज़हन में आ रहा हो नहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा, हमने तो अभी सिर्फ नमाज ही अंडरस्टैंड की है, हमने तो सिर्फ कुछ जिक्र और कुछ छोटी छोटी जो मुख्तसर आयात वाली सूराज हैं, सूरतें हैं, हमने उनको याद किया है, तो 50% आधा कुरान कैसे हो गया? तो हम आज आपको बताएंगे, प्रूफ करेंगे, आपको समझ आएगी कि आपने कैसे 50% वर्ड्स बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा अंडरस्टैंड किए हैं। ठीक है, तो किस तरह हम चेक करेंगे, आप एक्टिव हो जाएं जरा क्लास में। हम चलते हैं सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत को पिक करते हैं। हालांकि वो हमने पिछले चैप्टर्स में नहीं पढ़ी, लेकिन हम देखते हैं कि हमें खुद ब खुद पिछले 19 चैप्टर्स पढ़ने की वजह से उन 5 आयत के कितने लफ्ज ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज करते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। पहली आयत मुबारका और आयत मुबारका नंबर 2 आपके सामने है। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आपने हैंड रेज करना है, और मैं फिर आपसे पूछती हूँ कि आप में से कौन मुझे इनमें से कुछ वर्ड्स, एक दो या ज्यादा बताएगा जो कि हम ऑलरेडी आपको लगता है कि हमने पिछले दिनों में सीखे हैं। मैं जस्ट देख रही हूँ कि आप में से कौन बताना चाहेगा। राइट, सिस्टर शाजिया तारिक, आप अपना माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। आपके ख्याल में ये जो कुरान के अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कौन कौन से लफ्ज हम सीख चुके हैं? जी जी ऑलमोस्ट सारे स्वाए हरूफे मुक़त्तआत की मैम सारे आते हैं, सारे पढ़े हुए हैं। नहीं, आपने ये नहीं बताना कि आपको सारे आते हैं, आपने तो वैसे जी, याद किए होंगे। आपने इस कोर्स के हिसाब से अगर आपको आइडिया है कि हमने पिछले 19 चैप्टर में इनमें से कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं, चाहे आप हाँ मानी जी, मुझे ना बताएं, हाँ जी, आपको लफ्ज बताना है। हाँ जी, ज़ालिका, अल किताब, फीही और हुदन और लिल मुत्तकीन। लिल मुत्तकीन भी पढ़ा है? जी, ओके, चलें देख सूरह लेते हैं। सिस्टर फातिहा ने में सूरह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, नहीं ये नहीं पढ़ा, नहीं सूरह हाँ फाइन जी, फाइन, चलिए सिस्टर ने जी इतनी जी, अच्छी एफर्ट नहीं की, अब हम आगे ये देखते हैं। ज़ालिका अल किताब और हुदन और फीही। राइट, अब हम देखते हैं। ये देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है स्लाइड में। जितने भी वर्ड्स आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं ना, ये वो वर्ड्स हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े। बाकी जितने भी वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ब्लू के अलावा, वो सारे आप इस कोर्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं। माशाल्लाह, कितनी खुशी की बात है ये। अलिफ लाम मीम अभी हमने इसके बारे में कुछ स्टडी नहीं किया है। राइट, रोइबा ये हमने नहीं पढ़ा है। मुत्तकीन हमने नहीं पढ़ा है। बाकी जो अल्फाज हैं, ज़ालिका, अल किताब, ला, फीही, हुदन और लामजेर ली, ये सारे लफ्ज हम पढ़ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है यहीं पर आप एकदम शॉक हो गए होंगे कि इस तरह से हम देखते जाएंगे कि हमें कुरान की जो आयत हैं उनके कितने ज्यादा लफ्ज आते हैं। आप देखिए, पहली 2 आयत में तो प्रूफ हो गया कि आधे से ज्यादा लफ्ज हमें आते हैं, थोड़े से हैं जो अभी रह गए हैं, जो हम अगले कोर्सेज में सीखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये है आयत नंबर 3। तो अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि इस कोर्स में हम इनमें से कौन कौन से वर्ड सीख चुके हैं? सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें जो बताना चाहते हैं। आपको कोशिश करनी है। ईमान, आप अपना माइक ऑन करें। कोई से एक दो यस मैम। लफ्ज या ज्यादा लफ्ज बताइए जो आप कोर्स 1 में पढ़ चुके हैं। अल्लज़ीना मुमिनून बी व अस्सलात व मी, और मेरे ख्याल में बस इतने ही थे शायद। ओके, गुड एफर्ट, वेरी गुड एफर्ट। अब हम इसको देखते हैं, अपना माइक ऑफ कर लें। ओके, ये देखिए जी, माशाल्लाह। यहाँ पर देखिए, हमने अल्लज़ीना पढ़ा है इस कोर्स में, सिरात अल्लज़ीना पढ़ा था, है ना। बाज़िर बी ये हमने पढ़ा है, वाह पढ़ा है, अस्सलात पढ़ा है, और वमिम्मा हमने पढ़ा है, और हुम पढ़ा है। ये देखिए, हुम भी हमने पढ़ा था टेबल में, हु उसका, हुम उन सबका या उन्हें इस मानों में है। और ये मिम्मा क्या है, ये देखिए पिछली स्लाइड में बताया है, मिन
اور माँ को मिला के बना है मिम्मा, है ना। और मिन और माँ तो हम पढ़ चुके हैं। जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं मिन का मानी क्या पढ़ा था हमने। चैट बॉक्स वाले स्टूडेंट्स आ जाएं जल्दी से, मिन का मानी बताएं। मिन ये वाला से है, ईमान ने आई थिंक पहले बताया, सादिया, वाहिद, राबेल, हिरा, मिसबा, काफी सारे लोग बता रहे हैं माशाल्लाह। माँ के 3 मानी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराए हैं। माँ के 3 मानी बताइए। माँ के 3 मुख्तलिफ मानी बताइए अगर आपको पता है। जो नहीं क्या, वेरी नाइस माशाल्लाह। तो ये जो मिम माँ होता है ना, कुरान में कई जगहों पर आया है, याद रखिए, मिन और माँ को मिलकर बनाए, तो इसका मतलब है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे युमिनूना ईमान लाते हैं, गैब गैब, युकीमूना कायम करते हैं, रज़क़ना हमने रिस्क दिया, युनफिकून वो खर्च करते हैं। तो ये जो 2 आयतें मुबारका हैं, इनमें हमने क्या सीखा। अलिफ लाम मीम ये किताब नहीं है शक इसमें, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मैं इन आयात पे बिल्कुल इनको समझाऊंगी नहीं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये नेक्स्ट कोर्स 2 में आता है। उसमें कोर्स 2 में क्या होता है, शुरू से कुरान पाक जो है वो शुरू होता है सूरतुल बकरा से, फिर आपको ये समझाया जाएगा। अभी समझाएं टाइम लगेगा, अभी इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। बट सिंपली मैं आपको बामुहावरा तर्जुमा बता रही हूँ। आयत नंबर 3 है, जो लोग ईमान लाते हैं और गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और हमने जो रिस्क उन्हें दिया है वो खर्च करते हैं, यानी उसमें से खर्च करते हैं। ठीक है, आयत मुबारक नंबर 4 आपके सामने है, तो हैंड रेज कीजिए कि कौन एफर्ट करने वाला है। इंशाल्लाह इनमें से चंद लफ्ज आप बता दें कि आपको लगता है ये आपने पढ़े हुए पहले से। जी सादिया वाहिद अपना माइक ऑन करें। सादिया वाहिद फिर से माइक ऑन कर लें एक बार। जी Yes, ma'am. सादिया बताइए। वल्लज़ीना बिमा का इलैका वमा मिन का व हम बिलाखिरती आखिरती ओके हम। फाइन, बहुत अच्छे से माशाल्लाह सिस्टर सादिया जो है वो ढूंढ ढूंढ कर हमें बता रही हैं, कितनी अच्छी बात है। तो ये देखें फाइनलाइज यहाँ पर हो चुका है, तो स्लाइड हम देख लेते हैं। तो वल्लज़ीना बिमा इलैका वमा मिन और कब्ल का वर्ड और का, ये कहीं कहीं हमने ये सारे पढ़ लिए हैं। वबिल आखिर और हम, ये लफ्ज, इन सब लफ्जों को, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लफ्ज जो देखने में हमें एक लफ्ज लग रहे होते हैं, अरबी में वो दरअसल 2-2 3-3 लफ्जों से मिलकर भी बने होते हैं। जैसे इलई का 2 लफ्ज हैं, तो इस तरह ये सारे लफ्ज अगर अलग किए जाएं तो हमें समझ आता है कि ये हम पढ़ चुके हैं। युमिनूना, उनजिला और युकिनून, सिर्फ ये 3 लफ्ज हैं जो कि हमने नहीं पढ़े, वरना हमें पूरी आयत नंबर 4 आती है। तो आप मुझे बताएं, क्या ये प्रूफ नहीं है इस बात का। हम जितनी भी आयत खोल रहे हैं कुरान की अभी तक, उनमें से हमें ज्यादा वर्ड्स आते हैं और कम हैं जो कि नहीं आते, है ना। तो एटलीस्ट आधे तो आते हैं ना, है ना। तो देखिए अभी से ही प्रूफ होना शुरू हो गया है कि हमें 50% वर्ड्स कुरान के आते हैं। यहाँ हम देखते हैं आयत नंबर 5 है हमारे सामने। तो आप लोग ना हर क्वेश्चन के लिए फिर से हैंड रेज किया करें, ठीक है। यहाँ पे मोहम्मद मिजियाल को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो माइक ऑन करें, बाकी हैंड लो कर लें, और नए क्वेश्चन के लिए फिर वो क्वेश्चन हैंड रेज करेंगे। जी मोहम्मद Yes, मिजियाल ma'am. आप बताइए, Yes, ma'am. इनमें से कौन से लफ्ज ऐसे हैं आयत नंबर 5 में से जो आपको लगता है कि अभी तक के चैप्टर्स में हमने पढ़े हैं कोर्स 1 में। Ma'am, wow. Okay. Ulaika. राइट, Ulaika ala min ओके, rabbihim wa ulaika hum. ओके, ओके, Ma'am, बस. फाइन, वेरी गुड एफर्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ आई थिंक मेरा ख्याल है मिजियाल ने सिर्फ हुदन मिस किया है, वरना हुदन का वर्ड भी बेटे हमने हिदायत का वर्ड पढ़ा था सूरतुल फातिहा में, और आई थिंक कहीं और भी। तो ये ज़हन में रखना है, और माशाल्लाह मिजियाल ने सारे वर्ड्स परफेक्ट बताए हैं। अल मुफलिहून, देखा जाए तो फलाह का वर्ड हमने पढ़ा था अजान में, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और जो कामयाबी की तरफ आने वाले लोग होते हैं वो मुफलिहून की बात उनके लिए, मुफलिहून है वो, है ना। तो माशाल्लाह इसका मतलब है कि आयत नंबर 5 के सिर्फ एक लफ्ज हमें नहीं आता, वो भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी तो हमें मुकम्मल आते हैं। तो देखिए कितनी बेहतरीन बात है ये, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। इसी तरह हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं आयतुल कुर्सी को, इस तरह से वो रिवाइज भी हो जाएगी, हमें ट्रांसलेशन भी आ जाएगी, और कोर्स 1 हमारा असेस भी हो जाएगा वर्ड्स के हिसाब से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
تو یہ आयतुल कुर्सी के पहले अल्फाज हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अब आप लोग हैंड रेज कीजिए कि कौन आप में से बताना चाहेगा। भी जिन्होंने नहीं बताया, जस्ट वांट टू आस्क। फाइन, हाफिजा हिना माइक ऑन करें जी। वर्ड्स बताइए जो हम पढ़ चुके हैं। हाफिजा हिना आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, आपका माइक ऑन है? Where is Hafiza Hina? I'm going to search her again. आपका माइक ऑन हुआ था, आपने फिर से शायद ऑफ कर दिया है। चलिए ऐसा करते हैं, मिसबा असलम से हम रिक्वेस्ट करते हैं। मिसबा असलम आप माइक ऑन करें जी, बताइए। मिसबा मैम असलम क्या आपकी बताना है आवाज नहीं आ इसमें? रही है मुझे। जी, आपने ये जी बताना है कि इस स्लाइड में से कितने क्या लफ्ज आपको आते हैं या नहीं भी आते लेकिन आपने इस कोर्स में सीखे हैं, पहचानिए जरा। अल्लाहु आपने जी 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 अल्लाहु ला और इलाहा और वाओ हुआ और ला वाओ लाम और मीम। फाइन, गुड एफर्ट। आगे चलते हैं और देखते हैं जरा परफेक्ट आंसर। पहली पूरी स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं कोर्स में। अल हय्यु अल कय्यूम अल्लाह ताला के एट्रीब्यूटिव नेम्स हैं, सिफाती नाम है, ये भी हमने बाकायदा कोर्स में नहीं पढ़े। इसी तरह ला हु वला और नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अजान में हमने पढ़ा था, नमाज दिन से बेहतर है ना। लेकिन ये जो ब्लू वाले वर्ड्स हैं, बस 4 वर्ड्स, ताखुज़ुहु सिनतुन और 2 अल्लाह के एट्रीब्यूटिव नेम्स, ये अभी हमने नहीं पढ़े। सुभान अल्लाह। तो आप देखिए कि आयतुल कुर्सी भी हमें हालांकि कोर्स में नहीं थी लेकिन हमें ऑटोमेटिकली आ गई है। कोर्स 1 की बरकतें देखें जरा आप। आयतुल कुर्सी के अगले अल्फाज हैं, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निही। जी, तो इसके लिए कौन एफर्ट करेगा माशाल्लाह हम में से? हाफिजा हिना आप एक बार ट्राई करें माइक ऑन करके, पहले आपने ऑफ कर दिया था। जी आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है, बताइए। लहू मा फिस समावाति भी एंड वमा फिल अर्द मन इल्ला, एंड लास्ट लाइन में हूँ और अल्लाह जी हमने पढ़ा है, जल्ला मतलब वो अटैच्ड हो रहा है उसके साथ, हमने वो वैसे नहीं पढ़ा लेकिन इस तरह पढ़ा ओके, है। राइट। और जो पता है आपको, मैं एक बात बताती हूँ, जब कुरान में आप ढूंढेंगे ना इस तरह की एक्टिविटीज, आपको बाद में भी करनी चाहिए ताकि आपको कोर्स 1 रिवाइज हो, तो आप लफ्जों को गौर से देखें। अब ये बिइज़्निही में बी, इज़्न और ही 3 लफ्ज हैं, तो जो आपको आते हैं वो आपने ज़हन में रखना है कि ये मुझे आते हैं। जरूरी नहीं है कि वो मिला हुआ लफ्ज आपने पढ़ा हो। इस भी अगर हमने पढ़ा ज़ल्लज़ी में था। ज़ा, जी जी, ज़ल्लज़ी में ज़ा अगर आपने नहीं पढ़ा तो अल्लज़ी तो पढ़ा है ना, तो आपको ये ज़हन में रखना है। एग्जैक्टली। ठीक है, वेरी गुड एफर्ट, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी खुशी की बात है कि आयतुल कुर्सी के इस हिस्से में से भी सिवाय 3 लफ्जों के रा, यशफाउ और इज़्न हमने सारे पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन आपको खुशी हो रही है ना? बहुत, अल्लाह ताला को बहुत थैंक्स कहें। आज तो मेरा ख्याल है शुक्राने की नफल पढ़ने के दिन है, मेरे लिए भी आपके लिए, कि मैं, मेरे लिए इसलिए कि मैंने इस कोर्स का मैं आपके साथ रही हूँ और कोर्स मुकम्मल हुआ है और आपने अंडरस्टैंड की चीजें, और आपके लिए इसलिए कि आज प्रूफ हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपने कैसे कुरान के 50% वर्ड सीख लिए हैं। नमाज सीखी है उसका तो फायदा है ही, लेकिन कुरान के भी इतने वर्ड सीख लिए हैं, सुभान अल्लाह। तो क्या है यहाँ पर, वो भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ये जो वर्ड्स हैं हमें सब समझ में आ रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। अब यहाँ पर मैं देखना चाहूंगी कि कौन बताना चाहता है। लवली हनीन अपना माइक ऑन कर लें। यस मैम। जी,
मैम जो हमने पहले इनमें पढ़े से हैं वो वही वर्ड्स वर्ड बताने बताएं, हैं मुझे अभी आपकी आवाज शायद सही से नहीं आई है। मैम। हाँ, जो हमें आपने सीखे हैं कोर्स में। जी, माँ, वाव, ओके इल्ला, ओके वला, ओके, बताते जाएं, आपको जितने वर्ड्स पता है वो बता दें। मीन, ओके, मिन, राइट, ओके फाइन, आगे देखते हैं हम। और इन हाँ वर्ड्स को फाइनली, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ वेरी गुड एफर्ट, वेरी गुड एफर्ट। ये देखें, ये सब हमारे सामने आ गया। और मजे की बात ये है कि यहाँ पर भी सिर्फ 3 लफ्ज ब्लू में लिखे हैं जो हमने कोर्स में नहीं पढ़े। ये अलमू हमने कोर्स में पढ़ा है टेबल्स में, ये अलमू वो जानता है, ये अलमूना वो सब जानते हैं। आप देखिए टेबल भी कितना जरूरी है ना। माँ हमने पढ़ा है, बैना पढ़ा है, हिम और हुम है ना, हु और हुम या फिर ही और हिम, ये हमने पढ़ा था टेबल्स में। वा मा पढ़ा है, हुम पढ़ा है, वला पढ़ा है, बी शेइन पढ़ा है, मिन इल्मी, इल्मी का तो पूरा टेबल पढ़ा था है ना, इल्म, अलीमा का पूरा टेबल पढ़ा था, इल्म की बात पढ़ी थी, इल्ला बिमा और शाह है ना, ये सारे के सारे लफ्ज हमने पढ़े हैं। अगर आपको अभी इनके मानी सही से याद नहीं आ रहे कि आपने पढ़े हैं कोर्स में, तो इसका मतलब है आपने पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं किया। तो आपको चाहिए कि इन दिनों में भी, फाइनल क्विज में भी इतने दिन है, आपको चाहिए कि आप इसको रिवाइज करें ताकि आपको ये चीजें जो अभी भूल रही हैं वो याद हो जाए। सिर्फ थोड़े से अल्फाज हैं जो याद करने हैं। आयतुल कुर्सी का आखिरी हिस्सा, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कौन हमें बताने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद बिन उमर ने हैंड रेज किया हुआ है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना माइक ऑन कर लें। जी मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर इस स्लाइड में से वो लफ्ज बताएं जो आपने इस कोर्स में पढ़े हैं आपके ख्याल में। मोहम्मद उमर बेटे देर नहीं करनी ज्यादा, 2-3 लफ्ज बता दें जो आपने पढ़े हैं। जी वला, वसिया, अल, वल ओके अर्द, वल अर्रा, ओके डन फ्रॉम योर वहुआ, साइड। ओके चलें, वेरी गुड एफर्ट मोहम्मद उमर, बहुत अच्छा सुनाया आपने। अब हम आगे देखते हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ पर भी सिर्फ 4 लफ्ज हैं ब्लू कलर वाले जो आपने इस कोर्स में नहीं पढ़े। वसिया, कुर्सी, यऊदु, हिफ्ज़ुहुमा। अदरवाइज आपने पढ़ा है हु, आपने पढ़ा है समावात, आपने पढ़ा है वल अर्द, ठीक है, आपने पढ़ा है वला और हु, वहुवा अल अली अल अजीम। ये तो आपने सुब्हान रब्बियल आला में भी पढ़ा और अली का वर्ड भी पढ़ा है और सुब्हान रब्बियल अजीम भी पढ़ा है। आई मीन बहुत सारी जगहों पर हम इनको ढूंढेंगे, हमें सबके सब मिल जाएंगे, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में हम आते हैं दुआई कुनूत पर, और ये मैं आपको गाइड करती हूँ, जरा गौर से सुने। दुआई कुनूत के बारे में मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए थे कि नमाज का जरूरी हिस्सा है तो हम इसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो कोर्स में उस तरीके से शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसके वर्ड्स एक एक लफ्ज को समझने के लिए हमें हो सकता है नए कुछ रूल्स भी समझने पड़ते, कुछ और भी। और एनीवेज इसको बहरहाल चैप्टर 20 में एक्टिविटी में शामिल कर दिया गया है। हम इसके वर्ड्स को बहुत ग्रामेटिकली तो नहीं जानेंगे लेकिन इसका तर्जमा समझ लेते हैं, ठीक है। अब खुशी की बात यह है कि यहाँ पर भी हमें ज्यादातर लफ्ज पहले से आते हैं, ठीक है, सिर्फ ब्लू वाले वर्ड्स नहीं आते। जैसे नस्तगफिरु हमें नहीं आता, नुमिनु नहीं आता, नतवक्कलु अभी हमने नहीं पढ़ा, नुस्नी अभी हमने नहीं पढ़ा, नकफुरु नहीं पढ़ा, नशकुरु नहीं पढ़ा, नखलाउ, नतरुकु, यफजुरु ये नहीं पढ़ा। बाकी जो नजर आ रहे हैं ब्लैक वो आपने पढ़े हैं। तो इस तरह से ना पूरी जो भी चीज हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसका फॉर्मेट हमें समझ आ रहा होता है कि उसके बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बीच बीच में से कुछ नहीं आते। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरे पूरे समझ आ जाए तो फिर हमें डायरेक्टली कोर्सेज करने पड़ेंगे। लेकिन कितनी खुशी की बात है कि अब जब भी कुरान खोलेंगे, कुरान का कोई भी सफा इसी तरह से उसमें से काफी सारे वर्ड्स हमें आते होंगे। सुभान अल्लाह, यानी आधे आधे कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उनसे भी कुछ ज्यादा हमने सिर्फ एक कोर्स में सीखे। यहाँ भी देखें,
ये जो ब्लैक में आपको नजर आ रहे हैं, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका व इलैका व, फिर से व, और देखें अज़ाबका इन्ना अज़ाबका और बी, ये हम पढ़ चुके हैं और बाकी हमारे लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैं चाहूंगी कि ये जो दुआए कुनूत का तर्जमा है, ये आप में से कोई पढ़े। तो ऐसा करते हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत तर्जमा है, दुआ की तरह भी हो जाएगा। आज आखिरी लेसन है तो हम एक तरह से दुआ भी मांग लेते हैं। तो पहले तो बताइए कि आप में से कौन अच्छे तरीके से दुआए कुनूत मुझे अरबी में पढ़ के सुनाएगा। स्लाइड आपके सामने है, जरा हैंड रेज करें और उसके बाद हम तर्जमा किसी और से सुन लेंगे। जी जरा अभी हम देखते हैं। एमन शकील, आप क्या आप अगर सुनाना चाहती हैं अरबी में तो आप अपना माइक बंद करें। एमन शकील जी, अरबी में दुआ कुनूत सुनाइए और हम सब अपनी तरफ से दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलाउ व नतरुकु मा यफजुरुक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इय्याका, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आई डोंट नो। मेरा ख्याल है कि मेरी तरह बाकी लोगों को भी आवाज यहाँ ब्रेक होने लग गई है। चलिए, आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक। आमीन। अब ये देखें, बरकत है, रहमत है, सुकून है जो हमें मिला है, लेकिन वो वाली बात अभी नहीं लगी हमें जो लगनी चाहिए इसमें, वो फील नहीं हुई। हम कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है हमने क्या कहा। तो हमें अपनी जुबान में अंडरस्टैंड करना है वर्ड्स। अभी तो हम सिर्फ लफ्जों को समझ रहे हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर कोर्सेज में हम एक एक लफ्ज की ग्रामर भी समझेंगे। तो यहाँ जरा जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, हम इससे तर्जमा सुनते हैं। मुताहरा बतूल से रिक्वेस्ट करते हैं, अपना माइक ऑन कर लें। मुताहरा बतूल, आर यू इजी? अगर आप उर्दू तर्जमा पढ़ने के लिए इजी हैं तो माइक ऑन करें, नहीं है तो हम किसी और से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं कि मिसबा असलम से कहते हैं। मिसबा असलम, माइक ऑन कर लीजिए। जी जी, आप दुआ करवा दीजिए। उर्दू में करें, हम अपने दिल में दुआ कर रहे हैं। जी, ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी नाशुक्री नहीं करते और तेरी नाफरमान से अलहदगी इख्तियार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और तुझे सजदे करते हैं और तेरी तरफ कोशिश करते हैं और हम हाजिरी देते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला। जी, बेशक बेशक। ये सारी बातें कितनी अहम थी ना, इन बातों पे एक्नॉलेज करना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, बहुत ही बेहतरीन बात। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों में रखे, अपनी बरकतें हम पर हमेशा नाजिल फरमाता रहे, है ना। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराने का वक्त है, खुशी मनाने का वक्त है कि हम कुरान के न सिर्फ वो जो 20 चैप्टर्स में हमने नमाज मुकम्मल की है, नमाज के सारे हिस्से और चंद सूतें और वो सब, ना सिर्फ वो बल्कि कुरान की कोई भी सफ़े आप खोलेंगे तो यकीनन आपको वहां वो लफ्ज कहीं पर बहुत ज्यादा और कहीं कुछ अल्फाज ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपको पहले से आते होंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि जो आपने जो कुछ पढ़ा है आप इसको अच्छे से याद कर लें। याद हो गई तो आएंगे ना, तो ये बड़ी कामयाबी की बात है। अब तो आपको यकीन आ गया होगा इस बात पे कि जो आपको कहा गया था वो सच है। सिर्फ इतने छोटे से कोर्स में, पहले मैंने तो कभी, जब मैंने ये सीखा नहीं था ना, पहले की बात है, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि इतने थोड़े टाइम के कोर्स में कुरान के इतने वर्ड्स कैसे आ जाएंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब मैंने कोर्स किया तो मुझे आइडिया हुआ कि आसान भी है और शॉर्ट टाइम में इतने अल्फाज आ जाते हैं। अब आप देखें, हो सकता है हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, कितने लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से याद नहीं किए हुए होंगे। जब आप उन्हें बताएंगे उन्हें भी बहुत खुशी होगी, आप उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी सीखें, है ना। तो यकीन हो गया ना आपको कि कुरान आसान है, शॉर्ट टाइम में इतनी आसानी से आप इतने वर्ड सीख चुके हैं।
बताइए जरा, यकीन हो रहा है सबको? आपका रिप्लाई चाहती हूँ मैं चैट बॉक्स में। जी, अच्छा लग रहा है आपको सबको कि ये कोर्स आपका मुकम्मल हुआ है और आप वाकई कुरान को आसान तरीके से आपने इतने वर्ड सीखे हैं। ईमान, मिज़ियाल रिप्लाई कर रहे हैं मुझे, और ईमान भी रिप्लाई कर रही हैं, अरफा, मुताहरा, असमा रहमान, जुनैरा, अब्दुल मोइज़ बता रहे हैं, उम्मे अब्दुल्ला हैं, अब्दुल अहद हैं, और सारा हैं, और शाजिया आरिफ, मिसेस वसीम, लवली हनीन, मिस्बा असलम, मोहम्मद बिन उमर, मोहम्मद मिज़ियाल, अरफा रहमान, लवली हनीन, मोहम्मद बिन उमर, शाजिया तारिक, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन कीजिए बहुत खुशी हो रही है मुझे। हर बार हमें सीखने से, बात सुनने से और अच्छा समझ आता है, याद होता है ना। यहाँ पर यस, जो हमने जिक्र कुरान में पढ़े हैं, कुछ अज़कार हमने सीखे, कुछ दुआएं सीखी, और जो हमने इसमें, वो उनके जरिए से हम रोजाना अरबी में अल्लाह ताला से बातचीत कर सकते हैं, है ना। यानी वो जो, जैसे हमने नमाज के बाद की दुआ सीखी, बहुत सारी चीजें हैं, नमाज के दरमियान के जो अज़कार सीखे, उनके जरिए से, क्योंकि नमाज तो खुद अल्लाह से मुलाकात है, तो रोज अगर हम ये करते रहेंगे, क्योंकि हमें करना है, वो फर्ज है, जब हम अंडरस्टैंड करके करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, तो हमारी नमाजें, इबादत एक्सेप्ट होंगी, ठीक है, अल्लाह ताला एक्सेप्ट करेंगे हमारा, क्योंकि हम पूरे एहसास से पढ़े होंगे। दूसरा ये कि रोज अल्लाह से बातचीत का मौका मिलेगा। तीसरी बात ये कि हमारा जो कोर्स है ना, ये रिवाइज होता रहे, ये भूलेगा नहीं, है ना। और अरबी जुबान की जो प्रैक्टिस हमने की, अरबी के जुमले बोलते थे, मैं आपसे सवाल करती थी, आप जवाब देते थे, तो ये कितना खूबसूरत था कि हमने खुद ब खुद एक, जो है ना, वो फ्री में हमें अरबी के जुमले भी आ गए। हालांकि हम तो नमाज सीख रहे थे, कुरान सीख रहे थे, तो हर जगह आपको अरबी वाले दोस्त तो नहीं मिलेंगे। हमारे आसपास कोई ज्यादा अरबी बोलने वाले लोग तो नहीं रहते, हम पाकिस्तान में हैं, मगर अल्लाह ताला से तो हम सुबह शाम अरबी में बात कर सकते हैं ना। तो ये सारी बातें जो हमने नमाज में सीखी है, ये हमें रोज अल्लाह से करनी है 5 बार। जो दुआएं हमने सीखी हैं, ये रोज हमें मांगनी है, इन्हीं अल्फाज में, जैसे हमारे नबी ने सिखाई है, ठीक है। और जब हम अब समझ के पढ़ेंगे, तो फिर एक एक लफ्ज हमारा अदा किया हुआ अल्लाह के नजदीक कितना अच्छा कबूल होगा, है ना। नमाज जो है वो मोमिन की मेराज, यानी उसके लिए सबसे, उसकी सबसे बुलंदी की बात यही है कि वो नमाज अदा करता है। एक ये बात है कि वो अपने रब से मुलाकात करता है बाकायदगी से, है ना। और नमाज फर्ज है, हम सब जानते हैं। और इससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि हम जितना से मुताल्लिक और नमाज के अंदर वो दुआएं पढ़ते जाएं, और अल्लाह से वो चीजें मांगते जाएं जो अल्लाह के रसूल ने नमाजों में मांगी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इस बात को भी याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी परेशान मत हो कि कंप्लीट हो गया, अभी हमारा ग्रामर का हिस्सा है, और आखिर में मैं आपको अगला शेड्यूल भी बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भी रिसीव हो रहे हैं। मैं सब आपको बताऊंगी, रिवीजन कब है, फाइनल क्विज कब है, लेकिन लेसन के एंड में। चैप्टर 20B शुरू करते हैं। आपके लिए 20 सेकेंड्स की ब्रेक है, पानी पिए, फ्रेश होकर वापस आ जाएं। आज ग्रामर की आखिरी प्रैक्टिस है रिवीजन से पहले, ठीक है। टेक केयर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आफ्टर ब्रेक, लास्ट चैप्टर, अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 1, चैप्टर नंबर 20, उसका बी पार्ट यानी ग्रामर पोर्शन देखते हैं। जैसे मैं आपको शुरू में बता रही थी, सरफेस सगीर, यानी जो टेबल्स हमने सीखे हैं, अफ़आल के टेबल्स, उनके शॉर्ट जो है ना, कुछ आपको ऐसा अंदाज बताऊंगी जिसमें आप शॉर्ट करके उन टेबल्स को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, इस तरह से आपको वो टेबल याद रहने में आसानी होगी, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि हमने इस्म फेल हर्फ पढ़े हैं, और उनमें इस्म और हर्फ जो होते हैं वो क्योंकि वो उनकी पोजीशन उस तरह से चेंज नहीं होती ना, वो उसी तरह से ही रहते हैं। और जो इस्म है वो भी ज्यादा से ज्यादा वाइड से जमा और ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जो फेल होते हैं ना, वर्ब्स होते हैं, फेल, जैसे फेल मादी मुदारे हमने सब पढ़े हैं, वो जो है ना, वो असल में चैलेंज है हमारे लिए, वो बदलते रहते हैं। इसलिए आपको लास्ट लेसन में और आसानी दे दी है इस कोर्स ने कि आप शॉर्ट करके कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह, और आज हम देखते हैं उसी स्पेशल स्लाइड को जो इस कोर्स का खूबसूरत हिस्सा रही पूरे इस टाइम में। TPI, total physical interaction, is a beautiful game
वेरी इंटरेस्टिंग, जिसके रूल्स हैं जो यहाँ बताए गए हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से और मिलकर। तो आज मैं यही किससे सुनूंगी, आप में से जरा हैंड रेज कीजिए। ईमान माइक ऑन करके मुझे ये सारे रूल्स बता दीजिए। इशारे के साथ ईमान बताएंगी हमें। ओके मैम। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी, फिर से बता देती हूँ कि जो भी लफ्ज है ना, उनकी 3 किस्में हैं अरबी में, ठीक है। कुरान जैसे हम समझ रहे हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि लफ्ज जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो इस्म होंगे, कोई नाम या किसी की सिफ़त, फेल, कोई काम या ऐसा काम, और ऐसा काम जिसमें कोई जमाना भी, वक्त भी पता चल रहा है। और हर्फ क्या होता है? ऐसे लफ्ज जो जुमला बनाते हुए इस्म और फेल को जोड़ने में मदद करते हैं, उनको जोड़ते हैं और जुमले की सेंस बनाते हैं। और वो सारे लफ्ज जो अगर इस्म ना हो, अगर आपको लगे कि लफ्ज इस्म भी नहीं है, फेल भी नहीं है, तो फिर समझ जाएं कि वो हर्फ है। तो ये बहुत ही आसान है। आज भी हम फेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इस्म और हर्फ जो हैं उनको याद करना, समझना और याद रखना आसान होता है, क्योंकि ये उस तरह से अपनी नोयत के एतबार से ज्यादा तब्दील नहीं होते ना, उसी तरह रहते हैं। लेकिन फेल की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे हमने पढ़ी थी, मादी है, काम हो गया, मुदारे जिसमें काम होता है या आगे होगा इन द फ्यूचर, और अम्र नहीं में काम करने का कहा जा रहा है या ना करने का कहा जा रहा है। और फाइल काम करने वाला, फिर वो आगे बहुत सारे, वो जो फाइल और मफूल है एनीवेज वो इस्म है। ये मैं अभी आपको गाइड भी करूंगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी इसकी किस्में होती है ना, जमाने बदलते हैं, लफ्ज बदलते हैं। तो इस तरह से असल जो हमारे पास चैलेंज है ना याद करना, वो फेल है। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आसान कर दिया गया है। आपको शॉर्ट टेबल का तरीका हम सिखाएंगे, जिसकी मदद से आपको बड़ा वाला टेबल याद रहना आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये फाला का टेबल है, ठीक है। और फाला का मुकम्मल टेबल है। सिर्फ आखिर में आपको यहाँ मोनस के अल्फाज नजर नहीं आ रहे, बाकी ये मुकम्मल है। तो आप देखें कि इनको याद रखने के लिए आपके पास हिंट क्या है। हिंट ये है कि आप जानते हैं ना, पहला वाला जो टेबल है उसका नाम क्या है, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं। मैं चाहूंगी आज आप लोग बहुत एक्टिव रहें जी। चैट बॉक्स में बताएं, ये पहला टेबल फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलतुम फ़अलना, इसका नाम क्या है? अरफा कह रही है फेल मादी, अब्दुल बासित ने भी बताया है कि ये मादी है। बिल्कुल ठीक, इसका इशारा यहाँ होता है, शोल्डर से नीचे, यू कैन से पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद है यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। चैट बॉक्स में बताइए कि इसका नाम क्या है। सेकंड वाला टेबल जो मैंने अभी बोला है, जिसका इशारा आंखों के बराबर होता है, अब्दुल मोइज कह रहे हैं ये मुदारे है। सादिया वाहिद भी बता रही हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं फेल मुदारे है ये, ठीक है। उसके बाद तो ये देखिए ना, ये दो पूरे पूरे टेबल्स हैं। तो हमने क्या करना है, शॉर्ट टेबल बनाने के लिए फेल मादी और मुदारे के पहले पहले लफ्ज को हम पिक कर लेते हैं। पहला लफ्ज मादी का क्या है? फ़अला, राइट हैंड का इशारा राइट तरफ, और मुदारे का पहला लफ्ज क्या है? यफ़अल। तो हमने दोनों का पहला लफ्ज पिक कर लिया, इसीलिए उसको रेड कलर से हाईलाइट किया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है टेबल का, फेल अम्र और नहीं, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। अभी मैंने बताया भी है, लेकिन आप चैट बॉक्स में बताएं कि इसका नाम क्या है। कर, करो, मत कर, मत करो। ये फेल क्या है? अम्र। ओके, वेरी नाइस। और इस अम्र के अंदर अम्र और नहीं दोनों आ जाते हैं, गुड सादिया वाहिद। और उसके बाद आप देखें, ये तो फाइल, मफऊल और फेल हैं, ठीक है। ये आखिर में ये रह गए ना, हमने मादी का भी पहला लफ्ज लिया, मुदारी का भी। अब अम्र नहीं का भी पहला लफ्ज हमने पिक किया, इफ़अल। तो क्या बना? फ़अला, यफ़अलू, इफ़अल। 3 लफ्ज हमने ले लिए, एक मादी का पहला लफ्ज, एक मुदारी का पहला लफ्ज और एक अम्र नहीं का पहला लफ्ज। हो गया। अब हमारे 3 लफ्ज हो गए। अब हमने बाकी कौन से लफ्ज पिक करने हैं, आप देख सकते हैं, आखिरी तीनों लफ्ज पिक करने हैं। तो यहाँ एक बात मैं बता दूं, ये फेल का टेबल पढ़ रहे हैं ना आप, फेल मादी, फेल मुदारे, फेल अम्र, तो इसी टेबल का हिस्सा आखिरी 3 लफ्ज हैं। लेकिन ये इस्म है, ये आप इनको ये नहीं कहेंगे कि ये फेल है। फेल के टेबल का हिस्सा है, लेकिन ये इस्म है। क्यों? क्योंकि जब आप फाइल कहते हैं ना, दरअसल ये इस्म फाइल होता है। यानी आप देखिए, कोई शख्स, काम करने वाला कोई शख्स है, अली है, अहमद है, साइमा है, कोई भी है, तो हम क्या कहेंगे? फाइल, काम करने वाला या करने वाली, जिसकी भी बात, अभी हम मुज़क्कर पढ़ रहे हैं, काम करने वाला,
ठीक है, तो करने वाला कोई शख्स है ना तो वो इस्म हो, ठीक है। इसी तरह जो मफऊल है वो कोई भी चीज या कोई भी शख्स हो सकता है, तो वो भी इस्म है। ये फेल के टेबल में आते हैं लेकिन दरअसल ये इस्म होते हैं। इसी तरह फेलुन बजात खुद नाम है, काम का नाम है कि आप कौन से काम की बात कर रहे हैं, उस काम का नाम बताएं, वो होता है फेल, ठीक है। तो ये तीनों की वैल्यू अपनी अपनी है, हर मतलब तीनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, अलग से वैल्यू रखते हैं, इसलिए इन तीनों को हमें पिक करना पड़ेगा। तो हमारा शॉर्ट टेबल कैसे बनेगा जरा मुझे गौर से देखें और आपको याद होना चाहिए। फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। मादी का पहला लफ्ज, मुदारी का पहला लफ्ज, अम्र का पहला लफ्ज, उसके बाद आखिरी तीनों लफ्ज फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। अगर हम इस तरह याद करें तो कितना आसान है। अगर हमें इस तरह शॉर्ट टेबल याद हो जाएगा तो पूरा टेबल बड़ा वाला याद रखने में और आसानी होगी हमें, ठीक है। यस, ये देखिए जरा, फेल मादी मुदारी और अम्र के सारे सीगों का निचोड़ उन्होंने कहा है, हमने उसमें से उनको वर्ड्स में से वर्ड्स निकालिए ताकि आपको पूरे टेबल्स की पहचान भी रहे, याद भी रहे। अब ये देखें, तीन वर्ड्स हमने पढ़े, मादी मुदारे अम्र, फ़अला यफ़अलु इफ़अल। उसने किया, वो करता है, कर। तो आगे जो है इसमें ऐड कर दिए फ़ाइल काम करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फ़िअल काम का नाम या काम करना, है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों इस्म है, फ़िअल के टेबल में आ रहे हैं लेकिन ये इस्म है क्योंकि काम करने वाले की बात हो रही है, जिस पर काम से असर पड़ा उसकी बात हो रही है, काम के नाम की बात हो रही है, तो ये तीनों इस्म है और आपने इसको याद रखना है। तो होगा क्या, या तो इसके आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश होगा क्योंकि ये इस्म है ना, हमने शुरू में पढ़ा था। अगर तो आम इस्म होगा तो दो जबर दो जेर दो पेश होगा। अगर खास होगा किसी भी हवाले से ग्रामेटिकली तो शुरू में अलिफ लाम होगा, है ना। तो दोनों सूरतों में हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि ये इकट्ठे नहीं आते। दूसरा ये कि काम करने वाले तो ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अगर फाइल से हमने ज्यादा लोगों की बात करनी, काम करने वाले हैं, तो वाउनून भी लग सकता है और यानून भी। आखिर में दो पेश हो तो वाउनून आएगा, फाइल से फाइलून हो जाएगा, फाइलून, ठीक है, राइट। और अगर हम बात करें कि आखिर में दो जबर या दो जेर है तो हम कहेंगे फाइलीन, लेकिन इशारा यही होगा, ठीक है। आपका हाथ जो है वो यहाँ से इस तरह चला जाएगा, तो यू विल नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट। इसी तरह आगे देखिए, मफरूल की जमा जिन पर काम किसी काम से फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, अगर वो ज्यादा है तो आप इसी तरह दो पेश भी दो पेश हो तो वाउनून लगाएंगे, तो आप कहेंगे मफरूल का ये इशारा है ना, आप कहेंगे मफरूल या मफरूलीन, राइट, मफरूलून मफरूलीन। ये नई बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुज़क्कर की जमा के लिए वाउनून यानून लगता है। जैसे आपने मुस्लिम से मुस्लिमून बनाया, मोमिन से मोमिनून बनाया, तो ये वाहिद जमा है। इसी तरह आपने वाउनून यानून लगाया, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। इसी तरह फीमेल के लिए आपने क्या पढ़ा था कि मुज़क्कर के आखिर में गोलता लगाएं तो फीमेल का वर्ड बनता है ना, मोनस का, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमाह बनता है ना। तो इसी तरह फाइल से फाइला बनेगा, राइट लेफ्ट हैंड से आप कह सकते हैं फाइला काम करने वाली। और जमा कैसे होती है मोनस की, आज मोनस की जमा में आखिर से गोल ता को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और अलिफ ता लगा देते हैं। तो जैसे मुस्लिमा से हमने मुस्लिमात बनाया था, तो आप कहेंगे फाइला से फाइला, ठीक है। इसी तरह मफरूला, जिस औरत पर काम किसी काम से असर पड़ा, तो हम कहेंगे जमा क्या होगा, मफरूलात। आज को थोड़ा सा यहाँ ले जाएंगे तो वो जमा हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और चैट बॉक्स में आप अभी गैर जरूरी मैसेजेस ना करें, ठीक है। आप लोग फोकस करें यहाँ क्योंकि चंद मिनट्स की क्लास बाकी रह गई है और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिस मत करें, फोकस यही रखें। अब ये देखें, मैंने आपको पूरा टेबल अच्छी तरह समझा दिया। अब आपके पास छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टेबल आ गया, शॉर्ट टेबल जिसको हम कहेंगे, फेल का, फाला का, राइट। वो क्या है, गौर से सुने, फिर मैंने आपसे भी सुनने हैं ये टेबल। फाला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल कर, फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पे असर पड़ा, फ़िअल काम का नाम। ये हम जरा ईमान से सुनते हैं ये वाला शॉर्ट टेबल। ईमान अपना माइक जल्दी से ऑन कर लें। ईमान, आर यू देयर? सुनाइए। फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल कर, फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फ़िल काम का करना।
काम करना या काम का नाम, ठीक है, दैट्स राइट। तो ये देखें हमने ये वर्ड जो है वो यहाँ से सीखे हैं, और यहाँ बताया गया है कि आखिर में 2 मुअन्नस लफ्ज भी हमने कल सीखे थे। लेफ्ट हैंड से हम क्या कह रहे थे, फ़अलत उस औरत ने किया और तफ़अलु औरत करती है, तो ये एडिशन भी हमें याद है। अब हम शॉर्ट टेबल ना डिफरेंट अफ़आल के सीख लेते हैं। जैसे फ़अला की हमने इसका शॉर्ट टेबल सीखा है, फ़तह का शॉर्ट टेबल कौन सुनाएगा? मिसबा असलम हमें फ़तह का शॉर्ट टेबल सुना रही है, जल्दी से। जी मिसबा माइक ऑन कर लें। मिसबा जी। फतह उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फाती खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फतह खोलना। खोलना, दैट्स राइट। नसरा का जो शॉर्ट टेबल है वो हम सुन लेते हैं अरफर रहमान से। अरफर रहमान माइक ऑन कर लें अपना। नासारा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नस्ब मदद करना। वेरी नाइस, माशाल्लाह। और नेक्स्ट जो है दौरबा, वो हम सुनते हैं मोहम्मद बिन उमर से। मोहम्मद बिन उमर अपना माइक ऑन कर लें। जी बेटे माइक ऑन करें मोहम्मद बिन उमर, सुनाइए। ज़राबा उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है या मारेगा, इज़रिब मारा, मारा नहीं बेटे, मार, इधर मार, इज़रिब मार, ज़ारिब मारने वाला, ज़ारिब मज़रूब जिसको मारा गया। और लास्ट क्या है बेटे, ज़र्ब मारना, राइट। ओके, वेरी नाइस एफर्ट। आगे चलते हैं और अगला समिया वाला पोर्शन हम सुनते हैं शाजिया तारिक से। सिस्टर शाजिया तारिक माइक ऑन कर लीजिए। जी जी यस सुनाइए। जी मैम। सामिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा जिसको सुनाया गया, सामे सम देखिए ये जो मस्मू है ना, सुनना। ये जिसको सुनाया गया नहीं है, जिसको सुना गया, फर्क आ जाता है ना मानी में, आपने इसको ध्यान में रखना है। और सम जिसको सुनना, सुना, दैट्स जी राइट, जी जी माशाल्लाह, जी गुड सॉरी एफर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रैक्टिस भी कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने, आपको याद होगा हमने शुरू में सबसे शुरू में टेबल्स पढ़े थे, हुआ वो हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, और हिया वो एक औरत। इसी तरह ये नाउन्स थे ना, मतलब प्रोनाउंस थे। और इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउंस हमने पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, और हा उस औरत का। तो इसी तरह जो हमने अटैच्ड प्रोनाउंस पढ़े थे, ये इनको हम यहाँ पर जरा बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं ना प्रोनाउंस, नाउन की जगह। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, कुम आप सबका, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इनको जरा प्रैक्टिस करके कैसे पढ़ेंगे मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये हमारी लास्ट प्रैक्टिस है आई थिंक इस चैप्टर की। तो अगर आपसे कहा जाए, गौर से सुने, हल नसरता ज़ैदा, हल का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है क्या, नसरता आपने मदद की, ये इशारा है इसका, नसरता, ठीक है। क्या आपने मदद की, जैदन जैद की। अब जैद मदद नहीं कर रहा, बल्कि जैद की मदद की जा रही है, जैद पे असर पड़ रहा है, जैद कोई काम नहीं कर रहा, मदद वाला या कोई काम नहीं कर रहा। कैसे पता चला, क्योंकि इसके आखिर में 2 ज़बर है। अगर 2 पेश होती तो ये मदद कर रहा होता, लेकिन अब ये मदद नहीं कर रहा, इस पे 2 ज़बर है, इसकी मदद कोई और कर रहा है। हम कह रहे हैं हल नसरता जैदा, क्या आपने मदद की जैद की। जवाब है नाम नसरतु जैदा, जी हाँ मैंने मदद की जैद, ठीक है। इसी तरह अगर कहा जाए हल नसर तुम जैदा, क्या तुम सब ने मदद की जैद की, तो आप क्या जवाब देते हैं, नाम नसर ना जैदा, जी हाँ हमने मदद की जैद की। ये तो आपको पहले से आता है। अब अगर मैं जैद की जगह ये लिखूं वो, या क्या आपने उसकी मदद की,
या क्या आपने उन सब की मदद की, तो मैं कोई और लफ्ज यूज करूंगी ना, जैद तो इस्तेमाल नहीं करूंगी, जैद की जगह उसकी या उनकी लिखूंगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ देखिए जरा, हल नसरता हु का मतलब उसकी होता है ना, हल नसरता क्या आपने मदद की, हु उसकी, तो आप कहते हैं नाम नसरतु, जी हाँ मैंने मदद की, हु उसकी, या जी हाँ मैंने उसकी मदद की। तो नाम की जगह आपने हु लगा दिया। अब अगर ज्यादा लोग मदद करने वाले हैं, उस एक कोई एक शख्स है जिसकी ज्यादा आप सब लोग मदद कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी हल नसरतुमुहु, क्या आप सब ने मदद की उसकी। अब वैसे तो नसर तुम बनता है ना, नसर था आपने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, हमने फेल माजी के टेबल में पढ़ा था। लेकिन यहाँ आसानी के लिए नसर तुम हो नहीं, नसर तुम हो पढ़ा जा रहा है। सो नो वरीज, आप बस इसको समझ लें, इतना काफी है। ठीक है, अगर मैं आप सबसे पूछूं क्या आप सब ने मदद की उसकी, तो आप कहेंगे नाम नसर ना, जी हाँ हम सब ने मदद की वो उसकी, यानी जैद की जगह आप वो लगा रहे हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरह मैंने आपको समझा दिया। ये प्रैक्टिस मेरे साथ हाफिजा हिना आप कर लीजिए, माइक ऑन कर लें। अगर मैं मुदारे में आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आपसे कहती हूँ हल तंसुरु जैदा, अब देखिए मेरे हाथ का इशारा ऊपर आ गया क्योंकि ये मुदारे का टेबल है, आंखों के Yes, बराबर आ गया। क्या आप मदद करते हो जैद की? नाम सुरू जैदा, जी हाँ हम मदद करते हैं जैद की। माय डियर, अब मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, आपने हम नहीं कहना। क्या मैं कहना है मदद आपने? कर मैं मदद मैं करता मदद हूँ। करता हूँ जैद की। वेरी नाइस, माशाल्लाह। हल तंसुरून जैदा, क्या आप सब मदद करते हैं जैद की? नाम ना सुरू जैदा, जी हाँ हम सब मदद करते हैं जैद। वेरी नाइस। तो ये अन और नन के मानी आपको भी समझ में आ गए हैं। इसी तरह अगर यहाँ मैं हु और हु लगा दूं तो क्या होगा? मैं यहाँ रिक्वेस्ट करती हूँ मोहम्मद मिजियाल, आप अपना माइक ऑन करें, मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने कैसे बताना है। जी मोहम्मद मिजियाल। यस मैम, यस जी मैम। बेटे, अगर मैं आपसे कहती हूँ हल तंसुरुहु, क्या आप मदद करते हो उसकी? नाम अंसुरु, जी हाँ मैं मदद, अंसुरुहु, जी हाँ मैं मदद करता हूँ उसकी। राइट। हल तंसुरूना हु, क्या आप सब मदद करते हो उसकी? नाम नंसुरुहु, जी हाँ हम सब मदद करते हैं उसकी। वेरी नाइस। देखिए मोहम्मद मिजियाल ने भी सारे पॉइंट समझ लिए हैं, है ना। और इसी तरह अगर मैं मिस्टर असलम से कहूंगी माइक ऑन करें अपना, और अगर मैं आपसे अम्र में कहती हूँ, यानी आपसे कुछ करने का कह रही हूँ, अम्र फेल अम्र की बात होती है, उनसुर जैदा, जैद की मदद कर, तो जवाब क्या होगा मिस्टर? अंसुरु जैदन, जैद की मदद करूंगी, मैं मैं जैद की जैद मदद की करूंगा मदद क्योंकि करूंगी, ये मुजक्कर की टेबल, करूंगा। राइट। जी हाँ, उनसुरु जैदा, क्या आप सब जैद की मदद करो, नहीं मैं आपसे कह रही हूँ, सॉरी, उनसुरु जैदा, आप सब जैद की मदद करो। जी नंसुरु जैदा, हम सब जैद की मदद करेंगे। करेंगे या करते हैं, सही है, ये दोनों कह सकते हैं, दैट्स राइट। और इसी तरह अगर मैं ये कहूँ उनसुर हु, मदद कर उसकी, तो मिस्टर क्या कहेंगी आप? अंसुरु, मैं मदद करूंगा। हु, हु का अंसुरु, मतलब क्या है? मैं मदद करूंगा। नहीं, अंसुरु का मतलब है मैं मदद करूंगा, हु का क्या मतलब है? हु, उसकी। उसकी। वेरी नाइस। अगर मैं ज्यादा लोगों से कहूँ उनसुरु हु, आप सब मदद करो उसकी, जवाब दीजिए। हम मदद करेंगे उसकी। हाँ, लेकिन आपने अरबी तो बताई नहीं। नंसुरु, अरबी भी हम बताई, मदद करेंगे उसकी। हु उसकी, दैट्स राइट, माशाल्लाह, वेरी गुड एफर्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको मैं बड़ी एक मजे की बात बताती हूँ, लेसन के कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, लेकिन आखिरी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। दुनियावी दुनिया में रहते हुए ना, दुनिया में हम सब चाहते हैं ना कि सबके पास एक घर हो, कुछ लोगों के पास शायद जो भी होता है हम कहते हैं और अच्छा हो जाए, या नया घर हो, अपना घर हो, है ना। तो उसके लिए कितनी एफर्ट करते हैं आप। यहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं। जो छोटे हैं वो अपने बड़ों से सुनते होंगे, उनका भी दिल चाहता है, जो बड़े हैं वो तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें फेस कर चुके होते हैं। तो पूरी पूरी लाइफ जो है वो लगा दी जाती है मेहनत करने में,
वसाइल इकट्ठे करने में सालों हम लगा देते हैं, इसलिए कि हम अपना घर बना सकें, अपने लिए कुछ बना सकें दुनिया में, है ना। और होता क्या है, होता ये है कि इतनी सालों की एफर्ट, क्योंकि हमारी जिंदगी तो इतनी बड़ी है नहीं, चंद सालों की जिंदगी है, तो अपनी लाइफ का ज्यादा हिस्सा हम इसी चक्कर में गुजार देते हैं, है ना। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इतने पैसे इकट्ठे होते हैं या मुमकिन होता है घर मुकम्मल होना जिसमें हमने खुद रहना हो, तो ज्यादातर लोग जो है वो ओल्ड एज तक पहुंच चुके हो, काफी ज्यादा एज के हो चुके होते हैं, है ना। कम एज ही उनकी रह चुकी होती है, और अक्सर तो ऐसा होते हैं कि उस घर में दाखिल भी नहीं हो पाते और पहली दुनिया से चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमने ज्यादा रहना नहीं है, हमारी लाइफ हमेशा की नहीं है, बहुत चंद दिन भी हो सकते हैं, चंद लम्हे भी, साल भी, ज्यादा से ज्यादा यही है ना। तो हमें पता है कि हम जितनी भी एफर्ट कर लें, यहाँ जितना प्रॉपर्टी बना लें, जितना कुछ कर लें, वो वक्ती फायदा है, उस वक्त तक का फायदा है जब तक हम दुनिया में हैं। और हमें पता भी नहीं, हम इतनी प्रॉपर्टी बनाए, हमें पता ही नहीं हमारी जिंदगी 2 दिन ही हो या 2 महीने या चंद साल, हमें ये तो नहीं पता। ये तो हमें पता है कि लाइफ ऐसी है कि खत्म हो, हमेशा की नहीं, है ना। तो ये बात हम सबको पता है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि इसके बाद भी एक जिंदगी अल्लाह ने हमें देनी है, वो भी बड़ी खूबसूरत होगी, राइट। बड़ी खूबसूरत लाइफ होगी, वो यहाँ से कहीं अच्छी होगी। यहाँ तो इतनी आजमाइशें आती हैं, अल्लाह ताला हमें टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इसके बाद अल्लाह ताला हमें लाइफ देंगे, वहाँ टेस्ट नहीं होंगे, वहाँ पेन्स नहीं होंगी। अगर हमने ये वाले टेस्ट क्लियर कर लिए ना, अच्छे अच्छे काम कर लिए अल्लाह की मर्जी के, तो वहां पर तो बस सुकून होगा। फिर वहां अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो करो, तुम्हें तुम्हारी पसंद की सब चीजें मिलेंगी, तुम्हारे खाने पीने की, जरूरत की हर चीज। तो हमें फिर हम ये भी सोचते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें 2 लाइफ देनी है, एक दे दी और एक बाद में देंगे, तो ये लाइफ तो अल्लाह ताला ने थोड़े दिनों बाद ले लेनी है। जो दूसरी लाइफ देनी है वो कभी खत्म नहीं होनी, अल्लाह ताला ने कहा है कि वो हमेशा के लिए रहेगी। तो जिस जगह हमने ज्यादा रहना है, हमेशा रहना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें सोचना भी चाहिए कि हमें ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है जो हमारी उस लाइफ में काम आए और कभी हमारे पास से ना जाए। ये क्या बात हुई कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाए और अगले दिन हम दुनिया से चले जाएं, हमें तो फायदा ही नहीं होगा, फिर कोई प्रॉपर्टी तो यही रह जाएगी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। हमेशा की तरक्की चाहते हैं, हम ऐसे काम करें कि हमारा घर, हमारी सारी हमारी पसंद की चीजें हमें उस लाइफ में जरूर मिलें जो कभी खत्म नहीं होगी, फिर हम हमेशा उनसे फायदा उठाएं, ठीक है। हमें साहिबुल कुरान बनना, ठीक है। साहिबुल कुरान के लिए हाफिज कुरान जो पढ़ता भी है और अमल भी करता है, ये देखिए यहाँ पर मेंशन है ना। अब आप देखिए, साहिबुल कुरान वो है जो कुरान का दोस्त बन जाए, दोस्त के साथ दिल चाहते हैं इंसान हर टाइम रहे, हर वक्त उसको साथ रखे। तो इसका मतलब है कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ना है, पढ़ना है, समझना है, उस पर अमल करना है। कुरान समझेंगे तो उसमें जो चीजें हैं हिफ्ज करना भी आसान होगा, कई कई सूरतें हमें याद हैं, बाकी भी जो हम आसानी से कर सकें हमें जरूर करनी चाहिए, है ना। जो हिफ्ज करते हैं उसकी तो क्या ही बात है, और अगर नहीं भी कर पा रहे तो जितना कर सके हमें हिफ्ज भी करना चाहिए। अभी से नियत कर लें, ठीक है। अंडरस्टैंड तो हर हाल में करना है, और कोशिश करेंगे जितना हो सके हिफ्ज भी करेंगे हम, इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे दर्जात बुलंद हों, अल्लाह के नजदीक हमें जो अपनी लाइफ है ना उसकी वैल्यू ज्यादा हो, वहां हमें सब कुछ बेहतरीन से भी बेहतरीन मिले, इतनी नेमतें जो कभी खत्म भी नहीं होंगी, है ना। सुभान अल्लाह। तो अभी आपने जो कोर्स मुकम्मल किया है, इसके बाद आपने क्या करना है, और से सुन लीजिए। तमाम जो चैप्टर्स हैं आपके, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको 8 अगस्त, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आज 3 अगस्त है, 8 अगस्त यानी ट्यूसडे को आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन होगी। तो वो शॉर्ट टाइम में, आई फील के 1 ही घंटे में हो जाएगी। और जो भी टाइम है उसके अंदर आपको अगर सारे चैप्टर शॉर्ट करके टीचर्स पढ़ाएंगे तो उससे कितना फायदा होगा कि वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, है ना, मेन चीजें। तो आपने उसके लिए जरूर आना है ताकि आपकी फाइनल क्विज की तैयारी अच्छी हो, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। होमवर्क जो है वो कोशिश करें 10 अगस्त तक आप 10 अगस्त तक जरूर मुकम्मल करें, क्योंकि फिर आपका रिजल्ट भी बनना है, फिर रिजल्ट भी अनाउंस होना है ना। लेकिन होमवर्क मुकम्मल करें, और फाइनल क्विज आपका इंशाल्लाह 11 अगस्त को फ्राइडे को होगा, और एग्जैक्ट टाइम आपको बाद में अनाउंस हम कर देंगे, रिवीजन के दौरान आपको बता भी देंगे कि किस टाइम आपको दिया जाएगा। जैसे मिड क्विज का टाइम पहले आपको हमने बता दिया। अब आपका काम यही है कि आप इस कोर्स को अच्छे से मुकम्मल करें, इसको बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने इतनी मेहनत की है माशाल्लाह, अब थोड़ी सी मेहनत और करनी है,
और स्कूल जाने से पहले पहले आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, आपका रिजल्ट आपको सेंड किया जाएगा बाकायदा, आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और आपका एज अ मुस्लिम क्या काम है कि अब आपने अगले लेवल के जो कोर्सेज हैं, कोर्स 2 और उससे अगले लेवल्स को इंशाल्लाह बारी बारी ज्वाइन करना है। और जिसको लगे कि उसने कोर्स को मजीद अभी समझना है, वो इसी कोर्स को दोबारा भी कर सकता है, ठीक है। आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे लेकिन डिफरेंट टाइम्स में ये कोर्स हो रहा होता है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो आप किसी और दिन ज्वाइन कर सकते हैं, वीक में किसी और दिन, वीक में एक दिन की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीक में 2 दिन पढ़ना आसान लगता है वो ज्वाइन करें, आप इसको रिवाइज करें, अच्छे से याद करें, उसके बाद आप कोर्स 2 करें, कोर्स 3 करें, इस तरह सारा कुरान अंडरस्टैंड करें, कुरान के टीचर बने, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि सबसे बेहतरीन वही हैं जो सीखते और सिखाते हैं। सीख तो आप रहे हैं, जब सिखाएंगे भी, दोनों काम हो जाएंगे तो आप दी बेस्ट होंगे, है ना। और इस सिलसिले में टीचर बनने में, कुरान कोर्सेज करने में आपको जहां भी कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, अल फलाह मंजिल आपके साथ है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसने आपके लिए एफर्ट की है कि आप ये कोर्स कर पाए हैं, आप इवन के उनसे भी गाइडेंस हासिल कर सकते हैं इसके बारे में, और कि आपको अल फलाह से कैसे कांटेक्ट करना है बाकी साल में कोर्सेज करने के लिए, तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कितनी खुशी की बात है ये कि अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है और आप अल्लाह के करम से आप कोर्स को मुकम्मल कर पाए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस बात को आपने भूलना नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने इतना वैल्यू किया है। इंशाल्लाह हम इस बात को कभी इग्नोर नहीं करेंगे और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान जारी रखेंगे और टीचर बनेंगे। टीचर बनने के 2 बड़े फायदे, एक तो दूसरों को सिखाने से आपकी खुद की लर्निंग अच्छी होती है, सीखो सिखाओ और बेस्ट बन जाओ, है ना, इंशाल्लाह। तो हम आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कोर्स के चैप्टर्स मुकम्मल हो गए हैं। मैं कॉन्टेक्ट तो आपसे हमेशा 5 वक्त की नमाज की अदायगी को यकीनी बनाएं और कुरान को कम से कम 5 मिनट समझकर पढ़ें। अल्लाह ताला हमसे राजी हो और हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व